Hello students. Now we will have revision of chapter number 5 of microeconomics, which is very easy, demand. So what is demand in economics? So demand is basically the desire to buy the product. But all those who are having some desire, they do not constitute the demand, because a demand desire तो हर किसी के पास है, but not all people have ability to pay. ओके तो सपोज लेट से कि देर इज़ वन कंपनी प्रोड्यूसिंग कार्स, तो वो सबकी डिज़ायर काउंट नहीं करेगी, उन लोगों की डिज़ायर जिसके पास एबिलिटी टू पे भी है. ओके दे हैव परचेसिंग पावर, दे हैव मनी, दे हैव विटामिन एम, एज वेल एज दे आर विलिंग टू स्पेंड. ओके उनकी डिमांड में काउंटिंग होगी. So I hope you are able to understand this basic thing. Okay. So demand is the desire to buy plus ability to pay and willingness to spend, and demand is with reference to a particular price, because we are ready to buy at a particular price and at a particular time. So demand has reference to the price and time. नाउ डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में एक फ़र्क है. व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? डिमांड मीन्स different quantities which a consumer is willing to buy at different prices, and quantity demanded means the specific quantity जो उस पर्टिकुलर प्राइस पर उस कंज्यूमर के लिए सूटेबल है, यानी उस प्राइस पर वो कस्टमर उतनी क्वांटिटी बाय करना चाहता है. सो दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड. ओके so here we have various combination, here we have specific combination of price and quantity. Now individual demand, schedule and curve. So students, I always believe economics is a very easy subject. It's a social science. It is based on the behavior of people and common sense expressed in uncommon words using some diagrams and lines, and it becomes economics. So look here, individual demand, schedule and curve. So what is individual demand schedule? लेट्स से फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, प्राइस है 1 2 3 4, और ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड गिरेगी. साइकोलॉजिकली वी नो, ओके, आवर बिहेवियर. सो डिमांड इज एक्चुअली रिड्यूसिंग फ्रॉम 4 3 2 1, एंड उसी को यहाँ पर डायग्राम में एक्सप्रेस किया है. सो हियर यू आर एबल टू सी दैट देर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व और line. This is the demand curve. So demand curve is downward sloping. Why it is downward sloping? Because there is inverse relationship between price and demand. As you can see here, price 4 में से 3 हो गया. When price was 4 तब demand 1 थी, 4 में से 3 हो गया तो now demand 1 में से 2 बढ़ गई. So there is inverse relationship and hence demand curve is sloping downward. So individual demand schedule is a table and individual demand curve is a diagrammatic representation of this schedule. So here it is written, it's a table. It is showing different combinations of product that one customer is willing to buy at different prices. And same चीज में if you substitute word curve in place of table, then it becomes individual demand curve. Similarly, we have market demand schedule and market demand curve. So market demand schedule में it is a combined demand of all the customers in a market, all the consumers in a market. And for simplicity, we are assuming that, don't laugh, but we are assuming that there are only two consumers in the market. So consumer A and consumer B सिर्फ दो ही है मार्केट में. प्राइस 1 2 3 4 बढ़ रहा है, डिमांड कस्टमर ए की 4 3 2 1 और कस्टमर बी, देखो कस्टमर अलग है तो डिमांड भी थोड़ी सी अलग हो सकती है. सो 5 4 3 2. ओके सो देर इज रिडक्शन. सो टोटल सभी की आप डिमांड ऐड कर दोगे, सो वी विल हैव टोटल डिमांड 9753. सो प्राइस 1 पर डिमांड 9 लेनी है. सो हेयर प्राइस 1 है, ओके, एंड तब देखो डिमांड 9 है. 2 प्राइस पर 7 लेनी है. सो व्हेन प्राइस इज 2, हेयर वी कैन सी दैट कि डिमांड इज 7. So similarly here also we are getting downward sloping demand curve. So basically this is the horizontal summation, okay,
हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, दोनों की अलग अलग इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स इस वे से होगी और उसको सम अप कर दिया है, सो इट्स अ हॉरिजॉन्टल समेशन. So again, what is written here? What is market demand schedule? It is a table. Okay, it will show different combination of a product that all the customers are ready to buy at different prices. तो सिर्फ एक ही फर्क है, इंडिविजुअल में वन कस्टमर, हियर ऑल द कस्टमर्स इन ए मार्केट. एंड टेबल की जगह पर कर्व रख दो, देन इट बिकम्स मार्केट डिमांड कर्व. स्लोप ऑफ ए डिमांड कर्व. Actually, in geometry, slope is always measured as change in y upon change in x. Y एक्सिस पर हम प्राइस बताते हैं, x एक्सिस पर हम क्वांटिटी बताते हैं. सो चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी विल गिव यू द स्लोप. एंड प्लीज नोट, स्लोप इज नेगेटिव बिकॉज देर इज इनवर्स रिलेशनशिप. ओके, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है. सो देर इज इनवर्स रिलेशनशिप, तो हमेशा ये आपका स्लोप नेगेटिव होगा. Okay, so due to inverse relationship. Now law of demand, it is also called first law of purchase. It says that other things remaining constant. इसके लिए एक वर्ड है ceteris paribus. Okay, कुछ दूसरे लैंग्वेज में अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को ceteris paribus कहा जाता है. सो इकोनॉमिक्स के रूल्स आर बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस. तो डिमांड को चेंज करने वाले बाकी फैक्टर्स, प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट माना गया है, तो ही लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा. सो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी. यानी खुद के प्राइस और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स कॉमन सेंस. दिस लॉ सेज दैट इफ प्राइस विल राइज, डिमांड विल फॉल. If price will fall, demand will rise. So there is inverse relationship between the quantity demanded and on price of a commodity. So diagram and table already we have explained. Suppose in exam they are asking explain the law of demand. Okay, so individual demand schedule and curve draw करके you can explain this law. Now determinants or the factors which affect the individual demand. So individual demand को change करने वाले टोटल 5 फैक्टर्स है, और आउट ऑफ दिस 5 द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड टिका है, दैट इज द प्राइस ऑफ ओन गुड. ओके, गुड्स का खुद का प्राइस अगर बढ़ता है या कम होता है तो डिमांड पे ऊपर ऑपोजिट इफेक्ट होगी. सो देर इज इनवर्स रिलेशनशिप, ऑलरेडी हमने ये एक्सप्लेन किया था. तो दिस इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट. दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्राइस इफेक्ट. Now in exam if they ask explain the price effect, तो क्या करना है? Okay, so you can prepare this individual demand schedule and curve. तो ये जो आपने एक्सप्लेन किया है कि जब प्राइस 4 से 3 हुआ, डिमांड 1 से 2, so what you are explaining the price effect. Okay, now apart from own price there are other 4 factors which can affect the demand. Second is price of related goods. Now related goods are of two types, substitute goods or complementary goods. Now what are substitute goods? Goods which can be substituted for each other. यानी एक की जगह पर दूसरा आप ले सकते हो. These are substitute goods. For example, Pepsi and Coca-Cola. These are substitute goods. It can be substituted for each other. So in case of substitute goods, याद रखो there is positive, और positive means direct relationship between price of substitute goods and demand of our good. For example, हमारा प्रोडक्ट पेप्सी है, उसका सब्सिट्यूट है कोका कोला. कोका कोला किसी और का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो पीपल विल स्विच फ्रॉम कोका कोला टू आवर प्रोडक्ट. वो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा लेंगे. ओके, तो प्राइस ऑफ कोका कोला बढ़ गया तो हमारा प्रोडक्ट पेप्सी है, उसकी डिमांड भी बढ़ेगी. सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड डिमांड ऑफ आवर गुड. सम गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. देखो, रिलेटेड गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स गुड्स विच आर डिमांडेड टुगेदर, विच कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. ओके, एक दूसरे के लिए. ओके, एक दूसरे के बिना नहीं चलता. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार एंड पेट्रोल
complementary goods. Okay, pen and refill, complementary goods. So in case of complementary goods, there is inverse relationship between price of complementary good and demand of our good. मान लेते हैं हमारा प्रोडक्ट कार है. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या है? पेट्रोल. सो सपोज पेट्रोल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए. ओके, ऑलरेडी इट इज़ क्रॉस्ड 100, अब थोड़े कम हुए हैं. सो सपोज प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज्ड, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया. सो पीपल विल फील दैट कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज द कॉस्ट एंड बजट. सो वो कार लेना कम कर देंगे. ऑब्वियसली पेट्रोल बहुत महंगा होगा तो कार की डिमांड कम होगी. सो देर इज इनवर्स रिलेशनशिप, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, ओके, और हमारी डिमांड कम हो गई, कार की डिमांड कम हो गई. तो देर इज इनवर्स रिलेशनशिप. देन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, सपोज इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इज इंक्रीजिंग. सो अगेन हियर वी हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप. इनकम बढ़ेगी तो वो जेब में काफ़ी ज़्यादा पैसा है तो ही विल डिमांड मोर. So there is direct relationship. More income, more demand. Less income, less demand. Okay. Now taste and preference of people. If there is favorable change in taste and preference of people, तो demand बढ़ेगी. Okay. If there is unfavorable change, they don't like your product. Okay. Or they are not satisfied with your product. उनको कुछ नया चाहिए. सो दे वॉन्ट सम नोवेल्टी. तो देर इज़ अनफेवरेबल चेंज, आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी. देन एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस. ओके, इफ़ यू फील दैट के फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, इफ़ यू फील दैट फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो आज भले प्राइस ज़्यादा हो, यू विल बाय. यानी यू विल बाय इवन एट हायर प्राइस टुडे. लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा. लॉ ऑफ डिमांड से सेट इफ प्राइस इज हायर डिमांड शुड फॉल. लेकिन आप हायर प्राइस पे भी ज़्यादा डिमांड करोगे बिकॉज यू फील दैट कल तो और भी ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा. सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन विल ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड. ओके, सो to sum up, there are total 5 factors which affects the demand, individual demand. Okay, apart from own price, P are price of related goods, Y means income. Economics में income के लिए we use Y. T means taste and preference of people, and E means expectation. Okay, now some extra factors which affect the market demand. Okay, market demand को affect करने वाले apart from these 5 factors, extra 3 factors है. And first such factor is number of buyers or the size of population. So in India, many multinational companies are willing to do the business because we have, okay, we are blessed with population. So population या number of buyers जितने ज़्यादा होंगे उतने demand ज़्यादा होगी. Okay, so more number of buyers, more demand. Then distribution of income is also very important. Suppose in a country income is more or less equally distributed, okay, तो demand ज़्यादा होगी. But suppose there is inequality, okay, rich बहुत ज़्यादा है, poor rich बहुत कम है, poor बहुत ज़्यादा है. So in this case demand will be lower because income is not distributed equally across the people. So जितना income डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा उतनी डिमांड ज़्यादा होगी. ओके, आइडियली इट कैन नॉट बी इक्वल बट मोर और लेस जितना इक्वालिटी के तरफ होगा उतनी डिमांड बढ़ेगी. देन सीजन एंड वेदर. वी नो दैट वुलन आइटम्स, अम्ब्रेला, then raincoats, all these items are demanded in season even at the higher price. Okay, so season and weather also affects the market demand. And if there is, let's say, off season, even in tours and travels we observe this thing. So market demand, overall market में demand कम या ज़्यादा हो सकती है in case of season or seasonal products. अच्छा, then assumptions of the law of demand. We know that law of demand says that there is inverse relationship between own price and quantity demanded of a product. So law of demand अगर काम कराना है तो जो लिखा था ना other things remaining constant, तो क्या constant होना चाहिए? तो
फोर अदर फैक्टर्स, ओन प्राइस के अलावा जो चार फैक्टर्स अभी हमने सीखे उन चारों में कोई चेंज नहीं ऐसा मानना है। मीन्स रिलेटेड गुड्स का प्राइस सेम है, इनकम ऑफ कंज्यूमर सेम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं है, फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं है, तो ही लॉ ऑफ डिमांड विल वर्क। नाउ लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। देखो लॉ ऑफ डिमांड है ना सिर्फ आपको ये बताएगा कि देर इज इनवर्स रिलेशनशिप, बट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज कितना है। ओके, मीन्स डिमांड में चेंज ज़्यादा होगा या कम होगा, या न्यूमेरिकल रिलेशनशिप, वो हम इलास्टिसिटी नेक्स्ट चैप्टर में सीख सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट टेल यू द मैग्नीट्यूड और द एक्सटेंट ऑफ चेंज। देन law of demand also do not state proportional change in demand. Okay, means percentage wise numerical value you are not getting. वो सिर्फ ये बताएगा कि चेंज विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा। देन थर्ड लिमिटेशन, इट इज वन साइडेड। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड सेज सेट कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, बराबर। लेकिन अगर लेट्स से डिमांड डिक्रीज हो गई, ओके, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो प्राइस बढ़ना चाहिए। ओके, बट ये होता नहीं है। वी नो दैट ये वन साइडेड है। देखो प्राइस बढ़ा सो डिमांड कम हुई, लेकिन रिवर्स इज नॉट ट्रू। डिमांड अगर कम हो गई, डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो प्राइस थोड़ी बढ़ेगा। ओके, उल्टा डिमांड कम है, तो याद रखिए इट इज वन वे। आपको प्राइस की इफेक्ट डिमांड पर क्या है वही इस रूल में लिखा है। ओके, डिमांड की इफेक्ट प्राइस पर वो इसमें नहीं है। देन रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स व्हाई डिमांड फॉल व्हेन द प्राइस राइज। ऐसा क्यों होता है, वी ऑल नो, बट वी वांट इकोनॉमिकल आंसर। फर्स्ट, लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू मीन्स डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। So basic reason behind law of demand is law of DMU. Now in law of DMU we know that कि जितनी चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करोगे मार्जिनल यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन कम मिलता रहेगा। यस, इसका मतलब है कि कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे लेसर एंड लेसर टू बाय मोर। यानी कंज्यूमर से ज़्यादा बाय करवाना है तो प्राइस गिराना पड़ेगा, क्वांटिटी बढ़ानी है सेल्स की तो प्राइस कम करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न behind law of demand. Then यानी मोर गुड्स कैन बी सोल्ड, जब आप उसको डिस्काउंट दोगे प्राइस कम करोगे। दिस इज बेसिक साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर, बिकॉज ज़्यादा लेने से उसको सेटिस्फेक्शन कम मिलता है। देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। नाउ व्हाट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर इन दिस वीडियो ऑल्सो। देखो गुड्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर। अगर सब्सटीट्यूट गुड्स, कोका कोला का प्राइस बढ़ गया तो हमारी डिमांड भी, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। सो इट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सो व्हेन प्राइस ऑफ लेट्स से आवर प्रोडक्ट फॉल्स, देन पीपल विल बाय मोर ऑफ आवर प्रोडक्ट, बिकॉज वो पेप्सी को कोका कोला को छोड़कर हमारे प्रोडक्ट में आ जाएंगे। सो दिस इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सो देखो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज हमेशा पॉजिटिव फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। इसे इन कंपेरिजन टू अदर प्राइस, कोका कोला का प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। सो बोथ आर इंक्रीजिंग, सो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट पेजेस में वी विल ऑल्सो लर्न इन डिटेल इनकम इफेक्ट। नाउ व्हाट इज इनकम इफेक्ट? व्हेन इनकम इंक्रीज डिमांड ऑल्सो इंक्रीज। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। जब प्राइस गिरेगा, ओके, देन भले इनकम सेम है बट इफेक्टिवली परचेसिंग पावर विल इंक्रीज, यानी वो जो पैसे हैं उसकी पावर बढ़ जाएगी। इट मीन्स सेट रियल इनकम विल इंक्रीज एंड हैंस दे विल बाय मोर। ओके, तो प्राइस गिरने से रियल इनकम बढ़ती है एंड दे बाय मोर। सो देखो ये इंक्रीज है, ये भी मोर है, तो देर इज positive direct relationship. Number of buyers. Now when price falls then many buyers can afford. जो पहले नहीं खरीद सकते थे अभी भी वो खरीद पाएंगे। So due to this reason also demand बढ़ जाएगी, new buyers आ जाएंगे to buy this. Then different uses. Suppose let's say कि price is reducing, then we can put the same thing in different uses.
मिल्क का प्राइस कम हुआ तो हम उससे काफ़ी सारी चीज़ें बनाएंगे तो यूज़ बढ़ जाएगा, सो विल रिस्पॉन्ड मोर. So these are five, okay, reasons behind the